It requires the nation's attention. And as religions divide the country today, obviously Mother Ganga beckons the citizens of this country towards herself. So you all know modern Bhagiratha, Professor G.D. Agrawal Sahab, had laid down his life for the sake of Mother Ganga, because he had written to the Honorable Prime Minister thrice, but his prayer, his desperate call for purifying Mother Ganga was not heeded, and therefore he laid down the life, for the sake of Mother Ganga. And not only I've spoken to many people. They all consider the great Professor G.D. Agrawal Sahab as the reincarnation of Bhagiratha, and I would like to outright dub him as the modern Bhagiratha. So just to tell you a very interesting, an anecdotal way of describing an incident, because Professor G.D. Agrawal, and today one thing very important I would like to tell you. I am just sitting beside the scent, a very venerable scent of Matri sadan, because Matri sadan has been the pivot around which the whole movement of Ganga has been taking place. And Professor G.D. Agrawal Sahab had laid down his life. He sat on fast unto death only in Matri sadan. So Matri sadan is the gravity of center of this particular movement for purification of Ganga river. And Matri sadan has been fighting on various fronts against the sand mafias, against all the destructive forces. And today it is a matter of indeed a great fortune and a privilege that I am sitting beside the great saint, in fact in charge of the Matri sadan, the prophet that is Saint Swami Shivanand. And it is also a matter of privilege for me, because he happens to trace his genesis from Mithila, the Punya Bhumi of Mithila. And therefore when I spoke to him, there was an automatic, a spontaneous affinity with him. So basically, I'm sitting beside him, as already informed you. I'm going to ask him some questions, and he's going to respond to those questions. Because the second, a very important thing I would like to tell you right now about the incident that he confided in me, pertaining to that of great G.D. Agrawal Sahab. Because when G.D. Agrawal Sahab was very much at the fag end of his life, he just in the course of conversation with Swami Shivanand had said to him that, Swamiji, after my death, whether there will be somebody to carry on this movement or not, what will happen to Mother Ganga after I depart from this earth? Then great Swami Shivanand had given him an assurance that once you depart, once you leave this world for your heavenly journey, of course Matri sadan will continue with the crusade. And Matri sadan, I on behalf of Matri sadan is giving you that commitment, that assurance that the movement will continue. So today I have that sort of pleasure. Movement still continues. Padmavati, a young girl from Bihar, from Nalanda district, she has been crusading on the path of cleansing of the great river, purification of great river of Mother Ganga, just stepping into the shoes of Professor G.D. Agrawal Sahab. At the same time, there is Atmabodhanand, another saint from Kerala, an engineer by profession, gave up his entire life for the sake of Ganga, and both of them are recuperating in the aims. And I am sitting beside the professor with a great saint, Swami Shivanand. माननीय स्वामी जी, मुझे आपसे आज मिलकर के मुझे काफी अच्छा लगा, और आपका दर्शन प्राप्त हुआ, और आप जो है प्रोफेसर जी.डी. अग्रवाल जी आपके साथ थे, और आपको उन्होंने ये बात कहा था कि मुझे कहीं पर मैं हरिद्वार पूरा घूमा. A very important fact that he confided in me, I would like to highlight that Professor G.D. Agrawal, before coming to take his refuge in the ashram of Matri sadan, he moved around but did not find any particular location which suited him. So only Matri sadan, when he ultimately came to Matri sadan, only Matri sadan provided him with all sort of hospitalities, with the sort of sanctity that he was looking forward to. So Swami ji, आपको जो प्रोफेसर जी.डी. अग्रवाल साहब ने ये बातें कही कि कहीं उनको अच्छा नहीं लगा, बट जब मातृ सदन वो आए तो उनको ऐसा लगा कि माता गंगा जी का वास यहीं पर है, और उन्होंने एक बहुत बड़ा एक क्रूसेड शुरू किया, और उन्होंने अपना प्राण निछावर कर दिया. उनको आपने ये कमिटमेंट दिया था, आश्वासन दिया था
यदि गंगा आपके जाने के बाद ये स्ट्रगल खत्म नहीं होगा, ये क्रूसेड खत्म नहीं होगा, और आप वो क्रूसेड चला रहे हैं, आपके नेतृत्व में ये क्रूसेड चल रहा है। आत्मबोधानंद जी अभी अनशन पर 193 दिन से ज्यादा से है, और मान लीजिए हमारी जो बच्चियां हैं, जो सेंट पद्मावती जी हैं, उनको किस तरह से अभी वो मौत के मुंह से उभरी है। आप भी जाकर उनको भी आशीर्वाद दिए, आपको उन्होंने हाथ जोड़ करके ओम शब्द के करके आपको आज वो थोड़ा आश्वासित किए हैं कि आप वो रिकवर कर रही है। तो स्वामी जी आप देश को बताएं कि कैसे गंगा क्या है, क्यों गंगा के प्रति लोगों में इतना लापरवाही है, जो गंगा देश को जीवन देती है, जो गंगा के लिए भागीरथ, जो जिन्होंने गंगा को लाया, और जो मॉडर्न भागीरथ जीडी अग्रवाल साहब ने अपना प्राण त्याग दिया उनका। और मैं आपको ये भी बता दूं कि मैं पुस्तक लिखने वाला हूं जीडी अग्रवाल साहब के बारे में, आपको मैंने कहा। तो इस संबंध में कुछ बताएं कि गंगा क्या है और देश को गंगा से कैसे जोड़ना है। भारतवर्ष के किसी भी व्यक्ति को यह कहना नहीं होगा कि गंगा क्या है, क्योंकि जो कोई भी हिंदू है और थोड़ी सी आस्था रहे या न रहे, उसकी इच्छा ये रहती है कि मरने के समय एक बूंद गंगा जल, और जो ना देखते हैं कि जितने भी लीडर विचार मरते हैं तो उनकी अस्थि हरिद्वार में या कहीं गंगा में चली। तो यह गंगा के प्रति, और इसके साथ ही साथ हरिद्वार एक ऐसा नगरी है जहाँ पर कि 12 महीना लोग गंगा के स्नान करने के लिए आते हैं। 2-2 कुंभ और 2-2 अर्धकुंभ, इसमें करोड़ों के लोग गंगा किनारे आते, एक डुबकी लगाने के लिए पुण्यतिथि पर जमा। सरकार इसके लिए हजारों करोड़ रुपया खर्चा करती है। उस गंगा के प्रति क्या धारणा है तो इसी से लगा सकते हैं कि हरिद्वार में कुंभ का योग 2021 में है। अब लोग सरकार प्रचार करती है, पर कोई प्रचार नहीं, केवल पंचांग में होता था कि ये योग आया है, और पूरे भारतवर्ष के लोग मर जाते थे, भारतवर्ष को के विश्व को। तो गंगा की महत्ता जो है, जो आध्यात्मिक रूप से है, जो वैज्ञानिक रूप से है, इसके अलावा जो सामाजिक मान्यता है, ये तो सब देख रहे हैं। तब प्रश्न उठता है कि गंगा के लिए एक बात जरूर है। स्वामी 2010 में सारण जी बोले प्रोफेसर जीडी अग्रवाल साहब, उस समय प्रोफेसर जीडी अग्रवाल साहब 2010 के पहले वह 2 बार उत्तर काशी में 2008 में, और वह पुनः भारत के जीत आए, सरकार ने दिया, पुनः फिर 2009 में हो बैठे, सरकार आश्वासन दिया, लेकिन किसी ने हाईकोर्ट से इसके लिए, और वो कम 2010 में वह पेंशन के लिए मास्क बने। तो उस समय में मैं उनसे कुछ नहीं पूछा, उनको केवल फोन रखा था कि मैं यहाँ करना चाहता हूँ। पत्रकारों ने मेरे सामने मुझे कुछ नहीं पूछा था 2010 कि आप मास्क में, उस समय उन्होंने 3 बातें कही। एक बात तो ये कही थी कि मास्क ने तपोगी, दूसरी बात उन्होंने कही थी कि प्राण जाएगा तो गंगा, और तीसरी बात उन्होंने ये कही थी कि इतने दिन तक विवाह की करते हैं, ठगा जाते हैं, और इनके साथ साथ हमें ठगाएंगे। 2010 की बात थी, और उनका अनशन हुआ था, जिसके साथ लड़ाई नाम पाला भैरव घाटी और पाला थे, और गंगा 135 मीटर का किलोमीटर का क्षेत्र वो में से कोशिश हुआ था, लैंडमार्क बात हुई थी। उसके बाद करता और लेकिन कहीं उनको ये नहीं होता था। इस बार तो इस बार लोगों ने पूछा, इस बार उन्होंने स्पष्ट शब्द में कहा कि और कोई टीम संस्था है तो कोई एक मासिकता और बहुत जगह मीडिया का ये है। तब जब सरकार की अनदेखी की 3 पत्र दिए,
इस हिसाब से गडकरी ने उनको फोन पर जवाब देकर फटकारा और इस हिसाब से सरकार की थी तो वह किसी भी रूप में संकल्प को वापस लेने वाली नहीं थी। और ये हतोत्साहित होकर के मैं कहे गंगा के का हमारे बाद क्या होगा, तो मैंने उनको वचन दिया था कि स्वामी जी, जब तक मासूम का एक भी समझदार है गंगा का आपका याद नहीं। स्वामी जी, मैं आपको यहाँ रोकता हूँ। ये तो आपने बहुत अच्छी बात कही। एक बात ये बताइए कि भारत सरकार तो ये कह रही है, प्रधानमंत्री भी कह रहे हैं कि हजारों करोड़ रुपया गंगा में जा रहा है, तो फिर गंगा का क्या ऐसी दुर्दशा क्यों, इस बारे में आप क्या कहेंगे? आप एक बात बताइए, यदि हम हमारा और आपका उद्देश्य एक हो तो हमारे आप में दोनों आदमी एक काम करने के लिए चले, और हमारे आप और दोनों का उद्देश्य एक हो और यदि स्वार्थ भिन्न है तो उस काम में क्यों समस्या हो? समस्या तब होती है कि हम बोलते कुछ है और मन में कुछ रखते। ठीक है, तो कहते हैं कि आप यदि सचमुच में कितने बात तो आपने कहा कि आप जब कहते हैं कि गंगा को रिजुविनेट करें, प्रेस्टाइन फॉर्म में लाएंगे, ये उनकी शब्दावली है। रिजुविनेट माने क्या होता है वो बताइए, प्रेस्टाइन माने क्या होता है वो बताइए, नदी किसी को कहते हैं उसे बताइए। तो फिर मतभेद क्यों? और एक तरफ तो ये कहते हैं कि हम वही चाहते हैं, और दूसरी तरफ उसके अनशन को लेकर के 195 दिन तक अनशन किया, आत्मोधान कोई पूछने नहीं। और तब जब समझौता में एनएमसीजी के डायरेक्टर स्वयं आए अपने प्रोजेक्ट डायरेक्टर जी अशोक कुमार के साथ, और मोदी जी के नाम पर, मोदी जी के संज्ञान में ये बात स्वीकार किया। हमसे उस समय 15 दिन का मात्र समय मांगा, 15 दिन का भी समय मांगा था, हमने ये कहा दिया नहीं 15 दिन का। और उसके अभी यहाँ इस समय आचार संहिता नोटिफिकेशन, आचार संहिता समाप्त हो जाएगी नोटिफिकेशन। तो मैंने कहा था ठीक है, 7 दिन में आप लिखित में नहीं करने जा, हम अनशन को विराम दे देंगे। उसके बाद इसलिए मैं विराम शब्द का उपयोग किया था, और उसके बाद आप नोटिफिकेशन कर दें। इस बात को जब लोग विलम्ब किए, और विलम्ब करने के बाद हमको लिखित में दिया गया है, लिखित का भी लैंग्वेज ऐसा है जो स्पष्ट कहता है, उसमें कह दिया गया है कि 25 अप्रैल की वार्ता का संदर्भ करें। तो वार्ता में जो बात हुई उसी का संदर्भ करेंगे। आपका मांग क्या है? क्या पहला मतलब हमारी गंगा के संबंध में मांग मुख्य 4 है, जो हमारी मांग शामिल गंगा और उसकी सहायक नदियों पर समस्त प्रस्तावित और निर्माणाधीन बांध बंद हो जाए, भले ही उसमें कितना भी खर्चा क्यों कि मामूली सी बात है। यदि आप ये समझते हैं कि ये काम हमको करना है तो कितना लग गया इसमें क्या बात आती है। हमको इस जगह पर कोई जगह है, मकान बना है, यहाँ हम उस मकान को खाली जगह रखना, तो अब कितना लग गया, इतना लग गया तो कोई मतलब नहीं हुआ, आपको बताइए। तो गंगा को जो प्रेस्टेंट फॉर्म में लाएंगे तो जो बन गया उसे अब धीरे धीरे कमीशन करेंगे, लेकिन कितना बन गया इसका क्या सवाल है। और उसको वहां से घटाएंगे वहां से बढ़ाएंगे, ये कोई लॉजिक नहीं है। दूसरी बात ये कि गंगा के जो जितने बड़े हुए बांध हैं उसमें सरकार ने 7 करोड़ खर्चा करके 7 IITians का समूह बना करके और किया कि आप रिपोर्ट की, और उन्होंने रिपोर्ट किया कि 50% कम से कम बदलाव में जल तो आप अपने रिकमेंड के अनुसार तो जल्दी दीजिए। गंगा की हाईएस्ट ब्लड प्रेशर तक
वन कटान और खाने को बंद। और सबसे बड़ी बात है कि गंगा की दुर्दशा क्यों, इसलिए ये ऑफिशियल सब नहीं आते हैं अपने पे, आज ये रहा कल हो रहा है, सब आजकल भ्रष्टाचार का आलम है। जो आया जिसको जाया आदेश करके करा देता है, सब कर देता है। एक पॉलिटिशियन आता है, सब कर देता है। इसलिए गंगा के लिए जो भक्त पर बने गंगा वो एक ऑटोनोमस बॉडी हो, उसमें सरकारी आदमी भी रहे, सरकार के लिटरेसी भी रहे, और गंगा के इंजीनियर भी रहे, साइंटिस्ट भी रहे, और गंगा के परिश्रमती से और उसको ऑटोनोमस बॉडी का पब्लिक उसको दिखा दिया। ये चार मामले हैं। स्वामी जी, अब ये बताएं कि अभी जो जैसे पद्मावती जी, अभी जैसे आज उनका जो हालत बहुत सुधार हुआ है, आत्मबोधानंद जी अभी तक अवसर पर ही हैं, आप हरिद्वार से यहाँ पर आए हैं दिल्ली, तो यहाँ पर क्या आपका क्या कोर्स ऑफ एक्शन क्या सोच रहे हैं, मतलब किस तरह से, क्योंकि बात तो जनता तो ये हिंदू मुस्लिम में ही लगा हुआ है। देखिए है क्या, तो कहा गया है कि शुद्ध कहती है व्यंग राष्ट्रीय पुरोहिता, ये जो लिखना है कि जब मनुष्य स्वार्थ में हो जाता है तो उसको अपने स्वार्थ के इर्द गिर्द ही देखता है, उसको अभिनिवेश करता है। एक कीट है, वो कीट में अपना अभिनिवेश कर लिया तो वही कीट गिर जाता है। वैसे वैसे मनुष्य होता है। एक मजदूर है, उसका अभिनिवेश अपने परिवार जैसे पैसा और शराब पियो, ये करो, उतना उसी में अपना समझो, बुद्धि का स्तर बढ़ता है। तो वैसे वैसी संकीर्णता आती है, और जब संकीर्णता विशाल हो जाती है तो ऋषि की ये होती है, ऋषि होते हैं वह विशाल दृष्टि को देखते हैं, उनकी दृष्टि बहुत अग्रिम तक होती है। तो इसलिए राष्ट्र में और सब सो सकता है, ऋषि लगे होते हैं, तो हम अपना ऋषि धर्म का पालन करते हैं। और एक बात और, आप भगवत की चर्चा की, तो भगीरथ जब श्रीमद् भागवत में आया हुआ है, आज का तो श्रीमद् भागवत से पढ़ते हैं, सब जगह भागवत कथा होती है, उसमें नवम अध्याय की नवम स्कंद के नवम अध्याय में आया हुआ है कि भगीरथ जब ने जब ये प्रश्न किए हैं कि हम गंगा प्रसन्न हुए तो बोलो मांगो क्या मांगो, तो आप मत नहीं कर सकते, तो मैं कैसे जाऊँ वहाँ, तो हम जो ही पृथ्वी पर आएंगे फोड़ के पैसा तब चले जाएंगे। और दूसरी बात है, लोग जो अपना पाप धोएगा लग देगा उसको कौन तो भगवत पसंद दिए है कि मैं शिव की आराधना करूँगा और शिव जी को पसंद करके तुम्हें विराम। इसको मैं दूसरे ग्रंथ से दिखाता हूँ, महाभारत में आया है। युधिष्ठिर को जब रिश्ते दिखा रहे हैं कनखल की बात, कहते हैं ये तस्या कनखलाराधन, क्या कहते हैं, क्या कहते हैं, यहाँ पर गंगा ये कनखल है, जहाँ पर किसी जी ने गंगा द्वारे महाभाव ये लोक स्थित गंगा द्वार में एक मुद्री विशांक परिधारित गंगा द्वारे महाभाव, ये लोक ये गंगा द्वार है, गंगा द्वार हरिद्वार द्वार है। यहाँ शिव जी ने अपनी जटा को फैला करके गंगा को पृथ्वी के साथ मिला दिया। और दूसरी बात जो है वही कनखल कदमे का तो पत्थर के बारे में, वही शिव जी का एक ही भाषा को विज्ञान भाषा में कहेगा, धर्म की भाषा में उसी को धर्म शिव जी जरा मानता है, क्योंकि लोग तो शिव जी को पत्थर में ही पूजा करता है। और उसके पाप को दूर करने के लिए कहते हैं कि साधु न्यासना शांता ब्रह्मिष्ठा लोक पावना हरंत गंगते अंग संघात ये स्वास्थ्य साधु न्यासना जो सब त्यागी सन्यासी शांता इंद्रिय उत्पाद से शांत हुए, ब्रह्मिष्ठ और जिनकी लोक कल्याण की भावना है, वे स्वास्थ्य वो अपने अंग संग से तेरे पाप को हरण करेंगे, क्योंकि उनके हृदय में पाप को मारने वाले
तो अंग संघात का 2 अर्थ हुआ। यदि लोग उसमें स्नान करके करेगा तो ऋषि मुनि भी स्नान करेंगे, पाप को दूर हो जाए। और दूसरी बात अंग संघात, अब तो ये स्नान का नहीं है, तो राक्षसों का आक्रमण, तो ऋषि भी अपने अंगों को तुझ पर संग कर देंगे, जो कि हम लोग तब May actually, when great Swamiji had narrated about the scriptural description, I feel all of a sudden, by way of a recollection, an incident comes very live in my memory. I remember having read about Swami, an incident involving Swami Vivekananda and great Lokmanya Tilak Sahab. Once it so happened that Lokmanya Tilak was traveling, and sitting beside him was a young saint who introduced himself as Swami Vivekananda. But what happened? Along with them, few young people were also sitting, and seeing Swami Vivekananda in a saffron robe, they started, making all sort of censorious remarks, started taunting him in by way of conversation. They started saying, "Look, this saffron robe. These people are parasites on society. They keep on, eating on our wealth. They survive on our money and all that. And what they do nothing. In the name of God, they are deceiving the society." Swami Vivekananda gave a very, very appropriate and befitting repartee. He said, "Look, young men, it was whenever society came under some sort of crisis, as it happened in the case of during Buddha's time, when society was absolutely divided on caste basis, it was Gautama Buddha who liberated the society from caste prejudice. Again, when Vedas absolutely lost its relevance, at that point in time, when Jainism and Buddhism were ruling the rest in the society, and there was social degeneration had already started happening at a greater pace, so great Adi Shankara was born to liberate the society and to re-establish Dharma, re-establish Vedas and Upanishads. So, saffron robe is not a matter of cheating or matter of deception, but saffron robe, whenever a saint puts on the saffron robe, it is only for the benefit and the welfare of the society. Likewise, our great Swami Shivanand had taken up the kajal, taken up that crusade for purification of Ganga, because if Ganga is there, entire nation stands united. Today, when religions have almost divided the society, and the Ganga is beckoning, beckoning the people of India, both Hindus and Muslims should come under the umbrella of Ganga to purify her, and Ganga is going to be the uniting factor, the unifying factor for the nation. With this, I once again repeat my vow that I am going to write a book, Modern Bhagirata, on great Swami Shivanand, that is Professor G.D. Agarwal Sahab, with the blessings of Swami, the head monk of Matri sadan, Swami Shivanand, and all other brother monks, and with all the crores of people of this country, I take all the blessings and let the crusade for Mother Ganga be attain its fruition. With all this, I'm saluting all of you. One more thing, sir, Swamiji wants to say, please. आपने 2 बात की चर्चा की, तो उस 2 बात को मैं उस पर भी आपने चर्चा की, एक महिला की चर्चा और दूसरी मूर्ति से, तो हमें याद आ गया जनक का दरबार याज्ञवल्क्य के। तो राजा ने पूछा, ईश्वर लोग किस प्रकाश में दिखता है? सूर्य के प्रकाश, सूर्य अस्त हो जाए तो चंद्र के प्रकाश, चंद्र अस्त हो जाए तो अग्नि के प्रकाश, अग्नि बुझ जाए तो वाणी के प्रकाश, वाणी को दबा दी जाए तो आत्मा। और याद रखो, आत्मा का परिणाम। अब इस बात को अभी देखेंगे यहाँ पर क्या ज्ञान रूपी सूर्य का अस्त हो चुका है, मन रूपी चंद्रमा मलिन हो चुका है वासना से, अग्नि रूपी संघर्ष को नष्ट कर दिया जा गया है, और वाणी को जिस हिसाब से दबा दिया गया है, तो आप लोग जानते हैं कि विद्या से लेकर के और वाणी की क्या है। ग्रेट स्वामी जी, ऐसे में
एकमात्र आत्म प्रकाश है और तपो ब्रह्म। इसलिए हम लोग तप की सहारा लेते हैं। उस तप के द्वारा, तप के ताप से ही तो आप लोग आए। वाणी में शक्ति आएगी, वाणी की शक्ति से संघर्ष रूपी अग्नि प्रज्वलित होगा। संघर्ष रूपी अग्नि के प्रज्वलित होने पर मन की जो कालिमा वासना है वो हटेगी, और मन की कालिमा वासना हटने पर ज्ञान रूपी सूर्य का उदय होगा। और तब उस भारतवर्ष को जो वैदिक काल में जनक के दरबार में ऋषि याग किए थे, वह पुनः जो ऊपर से आएगा नीचे से ऊपर लग जाएगा। Well, thanks you, Swamiji. You said such an important thing. I would like to say one thing, because I've also written a pioneer book in the world, The Living Legends of Mithila. Since I do hail from that great Punya Bhumi of Mithila, so Swamiji also happens to be here, spoken about great Yagyabal Rishi, because he was the first knower of Brahma, who happens to trace his genesis from the Punya Bhumi of Mithila. So it's such a great conversation with the great Swami Shivanand, and he had spoken about such a great truth, the reality that our people have refused to see the light of the day, because they are so much immersed in illusion that they have refused to see the world beyond. So let us all wake up for the call. Ganga Mother is calling. Let us heed the call of Mother Ganga. With this prayer, I am ending my interview or my conversation with great Swami Shivanand. Thanks to all of you. आप हमको अंग्रेजी में क्यों नहीं बोले? जब हमको कोई क्या नहीं बोलिए।